Good afternoon and warm welcome on the launch of a special program on outreach on COVID-19 for its awareness and understanding. Honorable Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Shri Harit Shukla Sir, Advisor and Head, NCSTC, EST, Government of India, respected Dr. Manoj Pataria Sir, Hello, former namaskar. advisor, DST, respected Dr. VB Kamble Sir, Executive Director of Gujarat Council on Science City, Shri S.D. Vora Sir, Senior Consultant and Nephrologist, Dr. Manoj Gumbar Sir, Advisor and Member Secretary, Gujarat Council on Science and Technology, respected Dr. Narottam Sahu Sir, officers from Gujcost and Science City, and other attendees joining through the virtual mode. It is my privilege to welcome you all on this special occasion of this launch of this COVID-19 outreach program. In the last 5 to 6 months, few new words have been added in our dictionary, starting from pandemic, corona, COVID-19, and mask, hand hygiene, social distancing, and lockdown. Pandemic is not a word that can be used lightly or carelessly. While this is the first pandemic caused as a result of the coronavirus, it is also the first pandemic that can be controlled, says Dr. Tedros, the Director General of World Health Organization. Presently, life is back on track with the unlock in progress and in the new normal era. But battle is not over yet. In fact, we need to be more vigilant and follow all the guidelines to keep all safe. So this special outreach program is meant to make everybody learn about how to live the new normal. I would like to request our advisor, respected Dr. Narottam Sahu sir, his welcome note. Over to you, sir.
Thank you very much, sir. We have with us respected Shri S.D. Vora, sir. I would like to invite sir for his opening remarks. हरे कृष्णा। नमस्ते से शुरुआत करूंगा। काफी परिस्थिति बदल गई है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं, मंचस्थ महानुभाव एवं आमंत्रित गण। तो आज मैं ये कहूंगा कि सब अपनी अपनी जगह पर रहकर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मंचस्थ महानुभावों का साइंस सिटी और इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। जैसे नमस्ते की प्रक्रिया प्रणाली को हमने नए मोड पर आत्मसात कर लिया है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम जिसके आधार से सबसे संपर्क कर रहे हैं, ऐसी प्रणाली जो हमने अभी आत्मसात कर ली है, वैसी कुछ और चीजें और लॉकडाउन के बाद हमको रोजमर्रा में आत्मसात करनी है। वो कैसे छोटे छोटे प्रयत्न से बड़े काम की ओर हमको आत्मसात करनी है, ये सब बातें करने के लिए ये व्याख्यान माला श्रृंखला का आयोजन गुजकॉस ने सबने साथ मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में किया गया है। ये वेबिनार हमको बहुत ही उपयोगी रहेगा, उपयुक्त रहेगा। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Namaste. Thank you very much, sir. We have with us respected Dr. Vinay Kamble, sir. And he has led various during his stay in DST Vigyan Prasar. Sir has also guided us on many aspects of this outreach program as well. I would like to request respected Dr. Vinay Kamble, sir, for his brief address on COVID-19 outreach program. डॉक्टर बनोली कोम्बर, फिर डॉक्टर मनोज पटेरिया एनसीसीसी के हेड हैं, और डॉक्टर नरोत्तम साहू और मिस्टर एस.डी. वोरा यहाँ के जो डायरेक्टर है साइंस सिटी के, आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और वो भी कि इन दिनों में जबकि आपके साइंस सेंटर से की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए कि आप लोग आम लोगों में तथा खास करके स्टूडेंट्स में विज्ञान के बारे में आप बताते तो रहते हो, विज्ञान का प्रसार अवश्य करते हो, उनको एक वैज्ञानिक मानसिकता डेवलप करने की भी कोशिश करते हो। लेकिन अब को जो इन हालात में जो अभी जो करंट परिस्थिति जो बनी हुई है, तो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कोरोना के साथ तो हमको अभी शायद 1, 1.5 या 2 साल हमको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये तो कोई एक आदमी कोई वैक्सीन हमें नहीं मिलता या तो फिर लोगों में ज़्यादा लोगों में ऐसी इम्यूनिटी नहीं आती, तब तक तो हमें ये ज़रूर 1-1.5 साल तो ज़रूर ही निकल जाएगा। तो हमें ये जो हमारी एक जीवन शैली में जो बदलाव आया है वो अभी आएगा, तो उसको हमें एक आत्मसात करना है, हमारे जीवन का एक भाग बनाना है। काफी हद तक तो हमने बना लिया है, लेकिन पूरी तरह से बनाना है। देखिए, जब हम आज भी देखो जिस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो उसी माध्यम से हमें ज़्यादा हमें बोलने की, संपर्क में रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। खैर, जितने दूर होते हुए हम काफ़ी नज़दीक हैं विज्ञान और तकनीकी की वजह से। और ये जो महामारी का जो प्रभाव पूरी सोसाइटी में जो हो रहा है, तो उससे अब जब तक हमें ये कोई इसका इलाज नहीं मिलता, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ उस महामारी को हमसे कैसे दूर रखें,
इसके लिए हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको सब बताया गया और इस श्रृंखला में भी बताया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर ये मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोते रहना है। बस यही फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं और यही करना है। और उसके साथ साथ अभी जो भी जीवन शैली हमको बदलनी है वो हम बदलनी पड़ेगी। तो डॉक्टर गुम्बर आपको बहुत उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी श्री हरित शुक्ला और ये डॉक्टर मनोज गुम्बर और डॉक्टर मनोज पटेरिया एनसीटीसी के, उन्हें जो उत्साह से उन्होंने ये इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है वो सचमुच अभी से बेमिसाल है। और इन्हीं की वजह से हम सिर्फ ये साइंस सेंटर में नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, डिफेंस फोर्सेस और फिर अभी से मनोज पटेरिया जी के सहयोग से हम ये पूरे देश में ये प्रोग्राम हम ले जाना चाहते हैं और हम ले जाएंगे। तो ये हमारा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है ये है कि हम ये इन दिनों में हमें ये सब कुछ ये हासिल करना है। इसलिए जो भी रिसोर्स मटेरियल बना हुआ है या बन रहा है वो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में भी बन रहा है और सब आपको ये इसका उपलब्ध किया जाएगा, या तो ऑनलाइन या तो प्रिंटेड। एक पुस्तक का सेट भी बनाया जा रहा है और शीघ्र ही हो पाएगा। तो ये जो है ये ब्रॉड और हम यही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं अमित से आज तो कहना चाहूंगा और फिर एक बार आप सबका ये आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर हरित भाई शुक्ला और डॉक्टर नरोत्तम साहू, मनोज कुंबर, मनोज पटेरिया, इन सबका मैं ये धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much for briefing us about this program. We have with us senior nephrologist, respected Dr. Manoj Kumbar sir, being in the resource person for the program. I would like to invite him to say a few words on the significance of this program. Namaste. Good afternoon. We have all सभी को नमस्कार। launched the outreach सभी program. को नमस्कार। आदरणीय गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी श्री हरीश शुक्ला जी, साइंस सिटी के डायरेक्टर श्री बोरा जी, हमारे वरिष्ठ विज्ञान संचालक डॉक्टर कमले जी और हमारे मित्र कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर नरोत्तम साहू जी और सभी गणमान्य अतिथिगण और सभी पार्टिसिपेंट्स, कम्युनिटी साइंस सेंटर्स के सभी अधिकारी और कर्मचारी और सभी साथियों। सबसे पहले मैं गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी पदाधिकारियों, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैंने खुद भी देखा है कि पूरे गुजरात में कम्युनिटी साइंस सेंटर काम कर रहे हैं। वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है और जिसके माध्यम से पूरे देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार का एक पूरा नेटवर्क की परिकल्पना की जा सकती है। तो गुजरात का जो एग्जाम्पल है, मुझे लगता है सभी देशों के लिए अनुकरणीय हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्यक्रम हम कोरोना जागरूकता को लेकर के आज लॉन्च कर रहे हैं और हमारे सचिव महोदय उसको लॉन्च करेंगे, उसको कम्युनिटी सेंटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली वो हमारे इस पूरे अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो समाज में गांव-गांव तक इसके संदेश को पहुंचाएंगे। मैं यही बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है जिसका नाम है यश, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये पूरा 1 साल का कार्यक्रम है और मुझे खुशी है कि गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात साइंस सिटी ने हमारे साथ मिलकर के ये इस कार्यक्रम को, जो कि साइंस सिटी के तत्वावधान में हो रहा है, उसको पूरे देश भर से जोड़ा जा सका है। और जैसा कि डॉक्टर कामले ने कहा कि जो मटेरियल तैयार हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में, उसको मैं सोचता हूं कि अन्य भारतीय भाषाओं वाले भी उसको अनुकरण कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरोना का मुख्य जो संदेश है वो पंच तत्वों पर आधारित है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, तो ये संदेश भी हम पंच तत्वों के रूप में पहुंचा सकते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला, जैसे कि विभिन्न विशेषज्ञ आपको बताएंगे, डॉक्टर मनोज आपको और विशेष तौर पर जानकारी देंगे। सबसे पहला तो है हमें मास्क लगाना है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हमें मास्क लगाना है, या घर में भी किसी को सिम्टम्स हैं तब भी मास्क लगाना है। तो पहला तो संदेश है कि मास्क लगाना है। ये बात लोगों तक, ये कोई वीरता नहीं है अगर मास्क नहीं लगाते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमानी है अगर हम मास्क लगाते हैं। तो मास्क लगाने की जो संदेश है ये हमें लोगों तक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क लगाएं और इस महामारी से बचें। दूसरा जो संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमें करीब 2 गज और 2 मीटर की दूरी रखनी है। ये दूरी न केवल हमें बचाती है बल्कि अगले को भी बचाती है, और आगे चल करके हमारे जो संपर्क में आते हैं उनको भी बचाती है। तो ये 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आज हमें इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना है। कई बार देखने में आया है, लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं है, और साथ साथ चलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले में हाथ डालते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें बचना है और अपने साथियों को भी बचाना है। तीसरा संदेश है हमें हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, साबुन से धोने हैं, ठीक तरह से धोने हैं, कम से कम 20 सेकंड तक धोने हैं। तो ये जो बार बार हाथ धोने का संदेश है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, खान पान में बहुत ध्यान रखना है, ताकि अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वो मजबूत रहेगा और हमें ये बीमारी नुकसान नहीं कर पाएगी। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पंच तत्व है, वो है हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना है। हमें अपना विल पावर मजबूत रखना है। अगर हम अपने मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बहुत ही जागरूक होंगे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या हमें नहीं छू सकती। मुझे लगता है इन पंच तत्वों को लेकर के अगर हम समाज में जाएंगे और समाज के लोगों को इससे जोड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारे नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की ओर से एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका नाम है कोविड कथा। कोविड कथा हिंदी और अंग्रेजी में तो है ही, विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारे एंथुजियास्ट इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे खासी में, उड़िया में, बंगला में, मराठी में, तमिल में, इसी तरह से गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है। ये एक बुकलेट के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उस पर भी डाउनलोड करी जा सकती है डीएसटी भारत सरकार की वेबसाइट से, हिंदी और अंग्रेजी में। इसमें मुख्य बात यह है कि कार्टून के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कोविड के बारे में समस्त तरह की जानकारियां दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके नीचे की ओर हर पेज में A to Z के रूप में जानकारी दी गई है। जैसे ए अगर हम लें तो आरोग्य सेतु के बारे में बताया जाएगा। अगर हम कोई भी लेटर चुनते हैं तो उसके बारे में जानकारी उस पेज पर दी गई है। और उस नीचे पेज में उससे संबंधित वेबसाइट, उससे संबंधित रेडियो प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम, उससे संबंधित जो भी मटेरियल जहां भी अवेलेबल है उसका लिंक दिया गया है, जिसको आप अपने फोन से ही लिंक कर सकते हैं। अब उसमें मजेदार चीज ये है कि वैज्ञानिक जानकारी तो है ही, लेकिन जो स्ट्रेस इस समय लोग झेल रहे हैं, जो तनाव और दबाव झेल रहे हैं, उसको भी दूर भगाने का उसमें प्रबंध किया गया है, क्योंकि उसमें लोक गीतों के माध्यम से जो कोरोना की जानकारी दी गई है, उसमें कथकली के माध्यम से कोरोना की जानकारी दी गई है, उसमें पपेटरी के माध्यम से भी कोरोना के विभिन्न पहलुओं को जानकारी दी गई है। हाथ कैसे धोना है, कैसे सामाजिक दूरी रखनी है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है इस प्रकार से अगर हम लोगों तक जाएंगे रोचक माध्यम से, चाहे वो लोकगीत के माध्यम से हो, चाहे वो पपेटरी के माध्यम से हो,
जरूरी नहीं कि हम जाकर के वहाँ, क्योंकि आजकल हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो वो अगर उतना नहीं हो पाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन तरीकों से, या किसी तरह से हम जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से इस तरह के कम्युनिकेशन के छोटे छोटे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकेंगे तो वो बहुत कारगर हो पाएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यश कार्यक्रम की परिकल्पना रखी गई है और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में इसका भरपूर स्वागत हो रहा है और दूर दराज के इलाकों में भी हम पहुंच पा रहे हैं इन पंचतंत्रों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार सभी जो आयोजक हैं उनको बधाई देता हूं और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। Citizen science and risk communication becomes more important when there is role of each and every person in the society to fight against such crisis. I thank Dr. Manoj Pataria sir for his address on Yash 2020 and providing information about the COVID Katha booklet. Thank you very much, sir, for joining with us. And I would now like to invite Senior Consultant and Nephrologist, Dr. Manoj Gumbar sir. He is a medical professional and the resource person for this program. I would like him to say a few words on the significance of this program. Namaste. Good afternoon, everybody. Okay, again. Good afternoon, everybody. First of all, I should thank Department of Science and Technology, Government of Gujarat and Government of India for not only making me a part of this program, but but also understanding me and the ways actually I wanted to deal with this epidemic. This epidemic has given us both bad memories and good lessons too. I will highlight the blessing in disguise given to us by this epidemic. It has made us understand the value of practicing preventive medicine in the era of advanced medical and technologies. We have learned that prevention is still the best cure for communicable diseases like COVID-19. But it is high time that we realize that even non-communicable diseases are preventable. We just need to modify our lifestyles and maybe incorporate preventive medicine as a part of our primary education. The epidemic has made us realize the importance of building and maintaining higher level of immunity. Our traditional methods of cooking, homemade food, traditional methods like yoga, meditation, and family support are the best immune support. And they are actually immune boosters too. So going back to basics in certain aspect of life is not a bad idea. But at the same time, utilizing science and technology for health awareness, online meditation, online yoga, and monitoring healthcare facilities in rural areas. I think this is the way to uplift the standard of healthcare and health standards. The epidemic has made us realize the importance of improving and maintaining mental health too. Spending quality time with family members is a way to de-stress, and it improves family bonding too. And these two, in fact, are immune boosters, according to me. To conclude, I will say that we should carry forward this flag of awareness
from communicable to non-communicable, and from non-communicable to organ donation awareness programs, so that organ failure patient benefit from this kind of programs. I will thank all my team members, Dr. Sheetal Agarwal, Simran Gumbar, Dr. Akanksha Gumbar, Arushi Gumbar, and all the support which I have got from the Department of Science and Technology, Gujarat, and Government of India. Dhanyawad. Thank you very much, sir, for encouraging us in these difficult times. It's a privilege to have Sir, DSTGOG. Good afternoon to all of you. It's my privilege to be here for the launch of this special outreach program, Living with Corona. I would like to welcome all the members who have joined for this program, especially Dr. Manoj Padaria ji, Dr. Manoj Gumbar ji, Dr. V.B. Kamble, my colleague Dr. Vora and Dr. Sahu, and all of you who have joined this program. I had been associated with this Corona situation right from the beginning at the state level. We all realize that perhaps this is the biggest challenge of our times, the biggest situation or pandemic that we have seen in our lives. And this is not the only event in our lifetime. We have seen so many things, 9/11, a lot of terrorist attacks, a lot of floods, a lot of difficult situations. But despite all that, we will all agree that this is the biggest challenge that we have faced in our lifetime. Also, as was the challenge, our response has also been unprecedented. All the sections of society, including the government, which always has a major role in such situations, has risen to the challenge and taken steps which seem very unbelievable at this point of time. I remember when we started, and somewhere early in the March, the situation was very, very different. I remember initially, even for confirming the Corona initial cases, we had to send samples outside the state. And now, within a very short span of not more than 3 months, the state itself has capacity of testing more than 25,000 people daily. And this is also set to increase. Within a very, very short time, all the things which are required to face this challenge have been evolving. Our response to the situation has also been evolving, whether it is developing new health facilities, raising 1,200 bed hospitals in Ahmedabad, or having manpower, doctors, support staff to deal with this situation, equipments, drugs. Initially, there was a huge challenge to have PPE kits, masks being supplied to so many people. In fact, in Gujarat, I think only 2 people were making PPE kits, and at that too in a very limited quantity. And suddenly the demand goes up to thousands and lakhs of these things daily. So it was all a very daunting task. But all the sections of the society came together, and today, although we are all learning in this situation and the situation is far, far comfortable, but I think we have been able to face this challenge in a very measured way, very balanced way. And not only individual, society, but also at the government level, we have been able to sustain the situation and improve the situation constantly. All around the world, and especially also in Gujarat,
the mortality rates are coming down. Fortunately, in our state, we never ran out of basic facilities. In fact, when this thing started, we all thought that very shortly we will run out of ventilators, and people were very, very worried. But today also, I think hardly 5% of our ventilator facilities are being used, and I'm very sure, and I think that we'll never reach a situation that more than that thing is required. But what I want to say is the situation has evolved. This is a big challenge which the whole world is facing. We have also been learning as we go with time. Till now, we have been able to manage situation and develop according to the situation. There are a lot of things which are new to us: social distancing, wearing mask, quarantine, lock, unlock. Every few days we have new guidelines, work from home kind of culture. So all those things, we are also getting used to it. All the corona warriors, I think all the people who have been at the forefront, all our health workers, people who were in police department, people who were in operating all those basic services, even at the time when there was complete lockdown, most of the essential services were operating, whether it was electricity, water supply, school, hospitals, our traffic, all those things were operating, and there were a lot of people who were still coming out of their houses at that big time and also doing their duty. So I would really like to appreciate their effort in that. Also, as we have evolved, we have been able to learn how to deal with this thing. Corona definitely will be part of our lives for a very long time. Although I am a very positive person, and I sincerely believe by the end of this year, most of the situation would change, and things are progressing very fast, especially if you see the treatment protocols and how things have evolved. More and more patients are recovering. In Gujarat also 70% plus is the recovery rate, and hardly 4% people are actually unfortunately not coming back. But mostly, even in the crucial and critical cases, the recovery is very good. Newer drugs have come in recent times, Remdesivir, Favipiravir or Tocilizumab, and all these injections and all those medicines which have come up, they have been very useful in saving lives, and every week new developments are taking place. So I'm very, very hopeful. Not only treatment protocols have evolved, but the development of vaccine also is going on a very fast pace, and we hope that in a very short time we will have some solution to this problem which we are facing. As we all know that we are living in difficult times, and we have to change our thoughts. We have to learn new things as we go in this situation. In this situation, this effort of developing expert advice kind of thing on basic things on how to wear mask, how to be safe, how to basically sanitize your house or your living place. These topics are very, very relevant for all of us, and there are developments taking place every day on these issues. So our concentrated effort to inform the public, inform everybody about these things is a great effort. I really appreciate the team of Guj Cost and our department, and especially Dr. Manoj Gumbar, who has made a lot of effort for coming up with this series. I truly hope that this will be very helpful for all of us, and I'll be looking forward for such interactions in the future also. Thank you, all of you, and I really hope that it will be a useful exercise for all of you. Thank you. Thank you very much, sir, for enlightening us on how our state has combated this pandemic situation in a balanced and sustainable way.
We now proceed to the live streaming of the first session, that is Living with Corona. हेलो हेलो पायल બેન પૂરો થઈ ગયો ને અત્યારે હવે हेलो
सर जी आपका आवाज बंद है।
पॉसिबल नहीं है, उस समय हम उनसे सवाल करते हैं ये जानने की पेशेंट को ओपी लेने में अब आता है कोरोना से संपर्क इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, कोई प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दवाई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक एक दवाई है। ये दवाई आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क में आने रहने पर ही ये दवाई लेनी है, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट्स इसमें हैं जो कि कुछ पेशेंट में, जैसे कि किसी को कार्डियोमायोपैथी है, रिदम डिस्टर्बेंसेस है, या फिर कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जैसे कि कोई पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन है और पेट्रोलोसाइटोसिस है, तो उसको ये हृदय के कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है। इसलिए ये दवाई हमेशा फिजिशियन के संपर्क में रहकर ही लेनी। अब जानते हैं कि कोरोना से निवारक उपाय क्या है। उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर बनाए, अपने हाथों को साफ रखें, अपने हाथों से अपना मुंह और मुंह को टच ना करें, एक दूसरे से जब भी मिले तब नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं, एक वेलकम बनाएं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न आए जिसको खांसी जुकाम है। कफ और स्नीज एटिकेट्स यानी छींक खाते वक्त आप अपनी छींक जो है अपने ओमी में खाइए या फिर जब भी बात निकले तब मास्क पहने। इधर उधर ना किसी को दुखना है ना खुद की, और घर से बाहर निकले तो नो टच पॉलिसी अपनाएं, यानी कि आपको अगर किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है तो मत छूएं। सारे नियमों का पालन करें और इस तरह करें कि आपको देख के दूसरे भी इसका पालन करें। याद रखिए दोस्तों, किसी एक निवारक के उपाय का इस्तेमाल नहीं करना है, सभी के सभी निवारक के उपाय का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इस कोरोना की महामारी से बाहर निकलेंगे। हर निवारक के उपायों का विस्तार चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंस 2 मीटर की क्यों करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, कुछ कण हमारे मुंह से जरूर बाहर आते हैं और बोलते वक्त ये कण 1 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। खांसते हैं तब करीब करीब एक कण जो बाहर निकलने की स्पीड होती है ये 10 मीटर प्रति सेकंड की होती है, तो भी ये 2 मीटर से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब हम छींकते हैं तो इनकी स्पीड जो होती है 50 मीटर पर सेकंड से तक हो सकती है, और ये ड्रॉपलेट्स कण 6 मीटर की गति भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों ये 2 मीटर रखा गया है ताकि हम जब बोल रहे हैं या खांस रहे हो तो ये 2 मीटर का जो फासला है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर इस स्लाइड को देखने के बाद लगता है कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग भी एकमात्र उपाय नहीं होता। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको मास्क तभी ही दोनों मिला के, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों मिला के प्रभावशाली होते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों निवारक के उपायों का प्रयोग करते हैं तो हम इस महामारी का असर करीब आधा कर सकते हैं और इस महामारी से हम छुटकारा जल्दी पा सकते हैं। अब जानते हैं कि वायरस क्या चीज है। वायरस आरएनए वायरस है और इस लिपिड लेयर है और इस लिपिड लेयर पे एक स्पाइस बनी इसके कारण ये जाता है और इसके साबुन का इस्तेमाल करने के जो छाप बनती है वो जरूरी है इस वायरस को अपने हाथों से निकालने। दूसरा काम होता है साबुन का, ये जो लिपिड लेयर है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है और ये बड़ी आसानी से वायरस बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। इसीलिए साबुन और पानी इसको मारने में सक्षम है। दूसरा है साबुन और पानी का इस्तेमाल
कम से कम 20 सेकंड तक करना चाहिए। अगर साबुन और पानी की अवेलेबल नहीं है आपको एक हैंड सैनिटाइजर जिसमें कि 70% अल्कोहल है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके हाथ गंदे हैं और नजर आ रहे हैं लोग गंदे हैं तो सैनिटाइजर यूज करना है, साबुन और पानी भी यूज करना है। याद रखिए दोस्तों, आपके हाथ तुरंत सैनिटाइजर के बाद किसी की इलेक्ट्रिकल डिवाइस से ना लगाएं और गैस का ना चलाएं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी हाथ धोता हूँ मैं इस स्लाइड को नजर में रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ। आपने देखा होगा पहले स्लाइड अगर देख रहे हैं और तीसरी स्लाइड में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि सिर्फ पानी से धुला हुआ है। लेकिन अगर आप इसको साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं और 20 सेकंड से ज्यादा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में काफी अंतर आ गया है और पहली स्लाइड गलती है, छठी स्लाइड बिल्कुल साफ हो गई है। इसलिए जब भी आप हाथ धोएं साबुन से कम 20 सेकंड कम समय तो दूसरा रेस्ट करें। दोस्तों जब भी आप खांसी खाएं अपने हाथों में आजकल ना खाएं बल्कि आपकी कोनी में खाएं। अगर गलती से आपके हाथों में खाना है तुरंत ही आप अपने हाथ साफ कर लें या फिर टिश्यू पेपर लेके आए। और 10 एटिकेट्स में ये भी आता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसकी खांसी है। दोस्तों इस स्लाइड को देखते हुए मुझे कहानी याद आई। ये कहानी लगभग सब ने बचपन में या बड़ी एक किसान था, पूरा हो चला, उसके 5 पुत्र, पांचों पुत्र आपस में लड़ते रहते। किसान ने एक दिन सोचा कि मेरे बच्चों को सबक तो सिखाना पड़ेगा, आपस में लड़ाई करके ना उनका ना परिवार का कोई फायदा। एक दिन किसान ने 5 पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक और उसे तोड़ने 5 पुत्रों ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने एक गठरी दिया और उन्हें तोड़ने को बोला। 5 पुत्रों में से कोई भी गठरी तोड़ दे। उसी तरह से दोस्तों अगर हम एक निवारक के उपाय का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस ऐसे चलता रहेगा और ये महामारी नहीं चलती रहेगी और कोरोना वायरस हमारी कमर तोड़ता है। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो निवारक के सभी उपायों का एक साथ इस्तेमाल करना है और इस गठरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना वायरस हमको नहीं तोड़ पाएगा। उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना है और कोरोना वायरस को भारत से भगाना। अब हमने सारे निवारक के उपाय जान लिए। अब रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें अपनाना ही न्यू नॉर्मल आ गया है। कुछ बदलाव हमें घर पे और ऑफिस में लाने। घर में जब आप घर में हो तो आपको मास्क नहीं पहनना। मास्क पहनना है अगर कोई घर में से कोविड इन्फेक्शन से पीड़ित है। अगर आपका कोई हेल्पर रखा है, काम वाला है, काम वाली है तो उसे दूरी बनाए रखें। उसका टेम्परेचर लें या फिर उसे सिम्टम्स और कोविड के बारे में पूछें। आगे से उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें मास्क पहनने को करें। जहां तक हो सके सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाएं और इन चीजों के लिए घर से बाहर नहीं खाते वक्त पेमेंट ऑनलाइन करें और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ दोस्तों जहां तक हो सके डॉक्टर्स का कंसल्टेशन ऑनलाइन ही करिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद अगर ये डॉक्टर कहता है कि आपको मुझे आमने सामने देखना है तभी मैं कुछ आपके बारे में डिसीजन ले पाऊंगा, तभी उस डॉक्टर को क्लिनिक या हॉस्पिटल में जब आप घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें
चप्पलों और जूतों के दो जोड़े, एक छोटी सी बॉटल सैनिटाइजर की अपने हाथ में और अपने साथ में जरूर लेके चलें। जब भी कुछ सामान बड़ा खरीदने जाए, कपड़े का एक प्लास्टिक की बाल्टी या पब्लिक लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते वक्त वैलेट को टच ना करें। पेमेंट जहां तक हो सके कैशलेस ट्रांजैक्शंस एटीएम पे जाना पड़े तो एटीएम के कीबोर्ड को सैनिटाइज करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी कीबोर्ड को साफ करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो दरवाजा बंद ना हो, चप्पल और जूते घर के बाहर ही, अपने निजी सामान जैसे कि चाबियां, पर्स एक अलग से कॉर्नर में रखें। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं तो बेहतर है घर आने के बाद आप तुरंत नहाएं। यूं तो दोस्तों से कोरोना नहीं फैलता है, पर कुछ लोग अभी भी कुछ लगाते हैं, इसीलिए अगर आप उनको का इस्तेमाल करते हैं तो घर लगाए और नोटों पे दोनों साइन पर जिस तरह घर में बदलाव करना है उसी तरह ऑफिस में भी कुछ बदलाव करना। जब आप ऑफिस से जाएं उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने स्टाफ को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दें और निवारक के सारे उपायों के बारे में बताएं। ऑफिस जाने से पहले आप हाथ धो लीजिए और मास्क का प्रयोग करें। ऑफिस में अटेंडेंस फेस डिटेक्शन के माध्यम से करें और फाइबर गन से टेम्परेचर। ऑफिस में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट डाउन। रिसेप्शन पर ही पूछ लें हाथ से आने वाला व्यक्ति कौन से ऑफिस में किस व्यक्ति से मिलना चाहता है और उसे एक सेपरेट चैम्बर में। सबसे महत्व की बात है कि अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण हो जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, तो आप अपने लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत महत्व की चीज है, न केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो आप अपने कलीग्स को फैला सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आए हो जिसको कोरोना है तो भी आप अपने ऑफिस में, जब आप ऑफिस में हो तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एक दूसरे को नमस्ते बोलना है, हैंडशेक नहीं करते, एक दूसरे को चिल्लाना नहीं है, बात नहीं, ना खुद थूकना है, ना किसी को मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट लेके आपको ई सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए और हो सके तो कोरोना प्रिवेंशन सेंटर में बैच लेना चाहिए। ये बैच अगर आपके कमीज पे लगा होगा तो सभी को पता होगा कि आपको कोरोना के बारे में लगभग सभी जानकारी है और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से आजकल बता रहा है कि सामने वाले को कोरोना पता नहीं है, वो सारे प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसलिए डर चला जाएगा अगर ये बैच करना होगा। इसी का इस्तेमाल आप इस कोरोना के दौर में कर सकते हैं। पर आपको ऑफिस में जाने से पहले 2 घंटे पहले ये एसी ऑन कर देना है और इस ऑफिस के टाइम के बाद भी 2 घंटे एसी चला जाएगा। 12 एक्सचेंजेस हवा के अंदर आने दें 1 घंटे। एसी का तापमान 26 से 30 डिग्री पर सेट करें। अगर एग्जॉस्ट फैन है आपके ऑफिस में तो उसे चलाएं या फिर सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें। हो सके तो एक खिड़की कोरोना के दौर में ऑफिस और घर की सफाई करना। सब्जियां जब लाएं तब उसे 2 घंटे अलग से रखें और उसके बाद पानी और बेकिंग सोडा में 20 मिनट तक भिगोके के बाद ही इस्तेमाल करें। किसी भी पैक आइटम को 72 घंटे साइड में रखें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और ये बहुत को अच्छे से धोए साबुन और पानी से और उनकी फ्रीक्वेंसी होने के बाद किसी भी धातु वाली चीज को आप सैनिटाइजर या सोप
पानी से आप धो सकते हैं। फर्श को आप पानी और साबुन से, और अगर आपके घर है तो साबुन और पानी के धोने के बाद आप उसे 1% हाइड्रोक्लोराइड का पोछा जरूर करवाएं। घर के सभी दरवाजों के हैंडल, लिफ्ट के बटन जरूर साफ करें। लिफ्ट में लिफ्ट मैन का प्रयोग न करें, क्योंकि ये लिफ्ट मैन को कोरोना वायरस होने की संभावना बहुत है। और एक बार इस लिफ्ट मैन को हो गया तो पूरे ऑफिस में, बिल्डिंग में आजकल मोबाइल के बिना जिंदगी शक्य नहीं है। और ये मोबाइल काफी जल्दी गिरा हुआ होता है। एक स्टडी में बताया गया कि 40 से 60% मोबाइल में जंतु पाए गए हैं, और लगभग 90% ये जंतु ड्रग रेजिस्टेंट है। 10% में वायरस भी पाया गया है, और उसमें कोरोना भी शामिल है। मोबाइल पे लगभग 3 घंटे तक भी रह सकता है। आप काफी भारी मात्रा में मोबाइल यूज कर रहे हैं, और इसकी एक विशेषता ये है कि अगर आप बोले, आप सब कुछ कर भी आप मोबाइल से बात करते वक्त इसके संपर्क में जंतु अगर मोबाइल पर है तो उसके संपर्क में आप आने चाहिए। इसका निवारण ये है कि आप एक डिस्पोजेबल और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन मोबाइल कवर का यूज करें, हेडफोन और हेडसेट का इस्तेमाल करें, और एक दूसरे का मोबाइल, हेडफोन और हेडसेट शेयर ना करें। अब मोबाइल को साफ करने की जरूरत है दोस्तों। हाँ, कोरोना के इस दौर में जरूरत है। 70% अल्कोहल वैक्स मिलते हैं। अगर वैक्स अवेलेबल नहीं हो तो किसी भी कपड़े को 70% अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके इसे साफ कर सकते हैं। डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में ना रखें। जल्दी साफ करें, इसको स्विच ऑफ करें, और जितनी भी एक्सेसरीज हैं उसे अलग करें। और ध्यान रखिए दोस्तों, ब्लीच का इस्तेमाल ना करें और कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी डस्टबिन खराब हो सकती है। मौखिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ब्रश बैक्टीरिया और कोरोना वायरस से घिरा हुआ हो सकता है। आमतौर पर हम 3 महीने में एक बार ब्रश चेंज करते हैं, पर कोरोना के इस दौर पर जल्दी करना चाहिए, क्योंकि घिसा हुआ टूथब्रश ज्यादा कोरोना के दूसरा इन्फेक्शन फैला सकता है। हमेशा अपने टूथब्रश को सूखा रखने की कोशिश करें। अब जानते हैं क्या गार्गल्स कोरोना वायरस को मिटा सकते हैं? तो केवल गुनगुने पानी के वाले गार्गल्स आपके गले को राहत दे सकते हैं, और ये वायरस को आपको गले में और फेफड़ों में घुसने से रोक नहीं सकते। लिस्टरिन गार्गल्स 99.9% जर्म्स मिटाता है, और केवल जो ब्रेथ, लाक और जिंजिवाइटिस करते हैं वही बैक्टीरिया को ये मिटाता है। कोविड का में इसका कोई रोल नहीं। ओवरऑल आयोडीन वाले गार्गल्स अच्छे हैं, और सबसे बेहतर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले गार्गल्स, कार्बन पेरोक्साइड। लेकिन कोरोना में ओरल गार्गल्स का बहुत ज्यादा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि गार्गल्स करने के तुरंत बाद सलाइवा में वापस से वायरस हमारे मुंह में आ जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने से लगभग काफी लोग अभी भी गार्गल्स सही तरह से करते नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट गार्गल्स और लिस्टरिन गार्गल्स कोविड के खिलाफ इनका कोई रोल नहीं है। ओवरऑल आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड युक्त गार्गल्स का ही इस्तेमाल करें। अपने टूथब्रश को साफ रखने के लिए 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 15 मिनट डुबो के रखें। गर्म पानी में आप कुछ मिनट तक इसका साफ कर सकते हैं, या फिर इसे उबाल सकते हैं कोरोना मुक्त करने के लिए। दोस्तों, हम सभी इस महामारी से करीब 3 या 4 महीने से जूझ रहे हैं, और इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आना स्वाभाविक है। क्योंकि एक खांसी जो कि कोरोना का लक्षण भी हो सकता है, और वो उसकी खांसी भी
हो सकती है। तो जिसको भी खांसी होती है उसको यही होता है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, और ऊपर से मीडिया वालों ने इसके बहुत बड़ा हाइप कर दिया है और कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ काफी सारे डिजिटल मीडिया पे आती है और हमें खतरा है। और हाँ, 24 घंटे घर में रहना बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि हर एक को इस महामारी में कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ है। कईयों का काम आकाश काम हो गया है, कईयों की नौकरी चली गई है, पर दोस्तों हमें इससे लड़ना है और हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा करना है। मानसिक स्थिति में सभी प्रकार एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में बढ़ोतरी हुई है और सुसाइड के रेट्स भी बढ़े हैं। इससे लड़ने के लिए हमारी मानसिक स्थिति और को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कोविड मीडिया से दूर रहना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई हॉबी डेवलप करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। हमें उन चीजों पे ध्यान देना है जो हमारे पास में है, कुछ चीजें हमारे पास में नहीं है उसके बारे में ज्यादा गौर नहीं करना। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं और एक हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करें। और दोस्तों, जो भी जानकारी है वो पर्याप्त, सफिशिएंट और अच्छी जानकारी है ताकि पता चले आपको कि इससे कैसे रहना है, किस तरह से जीना है और कितना लंबा हमें इससे साथ रहना है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि शराब या मदिरा का सेवन करने से चिंता नहीं होती, पर ये गलत है। सच्चाई ये है कि इन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और सुसाइड के रेट ज्यादा है। हमारे लोग प्रतिकारक शक्ति कम करते हैं, इसलिए कुछ भी हो शराब और मदिरा का सेवन करना। अब मैंने आपको सब मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के विस्तार में बताया है। अगर इस सारांश में बताता हूँ केवल ये है कि 7 से 8 घंटे सोएं, अच्छी बैलेंस डाइट लें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें, शराब और मदिरा का सेवन ना करें, एक दूसरे को डिजिटल मीडिया के थ्रू टच में रहें, भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करें, धीरज रखिए दोस्तों, कठिन समय है, निकल जाएगा। अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखिए, म्यूजिक एंजॉय करिए, मूवीज देखिए, किताबें पढ़िए, कोई ना कोई नई हॉबी ढूंढिए और कोविड मीडिया से मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी काम से आपकी मानसिक स्वस्थता बढ़ती है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, केवल खाने पीने से ये बढ़ती नहीं। केवल इस स्लाइड में और पिछली वाली स्लाइड में कोई अंतर नहीं। कहने को तात्पर्य है कि जो भी आपकी मानसिक स्थिति को स्वस्थता बढ़ाती है जो चीज, वही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। दोस्तों, बच्चों के स्कूल बंद है पिछले 3 महीनों से और हो सकता है आने वाले 3 या 4 महीनों में स्कूल बंद है। इसीलिए बच्चों का खास ध्यान रखना है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जानकारी देनी है, खुद ही जानकारी दें, ना ताकि आप उन्हें सही जानकारी दें, ना कि वो केवल कोविड मीडिया की जानकारी दें और अपने पर प्रेशर डालें। खुद भी निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करके उन्हें भी सिखाएं। सोशल मीडिया को उनको दूर करें, फैमिली टाइम और एक्टिविटी बढ़ाएं, उन्हें कुकिंग, गार्डनिंग, फ्लावर और पेड़ पौधों लगाने में उनका रुचि डालें। उन्हें अपने मित्रों से डिजिटल मीडिया के थ्रू संपर्क में रहें, उन्हें कोई क्राफ्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, बोर्ड गेम्स में व्यस्त रखें, उनका रूटीन बनाएं और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करने और उन्हें जो रूटीन स्कूल का है वो रूटीन से स्वस्थ रहें। जहाँ तक हो सकता है बच्चों को अपने माता-पिता के साथ ही रहना है। इसी कारणवश अगर माता-पिता के साथ नहीं रह सकते हैं तो माता-पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने बच्चों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी
दोस्तों हम कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई ले सकते हैं पर हम कुछ उनकी वैक्सीन और बच्चे जो 2020 में और 2020 में कुछ भी पिताजी माताजी सही बात है। देखिए ये स्लाइड सफेद काला और पीला सफेद वाला जो है जैसे बड़े कभी बिना किसी काम से घर बाहर नहीं निकलते। जब भी हम एक दूसरे को मिलते थे हम नमस्ते करते थे। हम ना कभी केवल एक दूसरे से हाथ मिलाते थे ना ही कभी हम वेलकम करते थे। हम अच्छी खुराक खाते, हम बाहर का खाना नहीं खाते। हम जब भी हमें सामान लेना जाना होता था हम एक लिस्ट बनाते थे। हम कसरत करते थे, हम व्यायाम करते थे, हम ध्यान करते थे। हम बड़े पेशेंट जल्दी से हम मुरझा नहीं जाते थे, डिप्रेशन में नहीं आ जाते थे। हम हमेशा ज्यादा
सामना पाने से मिलता है और बड़ों की इज्जत करना और बड़ों का ख्याल रखना तो ये सब चीजें हमारे बड़े जो फर्क आया है सभी लोग ये सोच इसी Thank you one and all for joining for this very interesting session. And I now request Dr. Poonam Bhargava, Scientific Officer, Gujarat, to give the vote of thanks as we come to the closing of this program. Thank you, Payal. Respected Secretary,
sir, who took so much of his some of his time for spared some of his time from his busy schedule. Respected Vora sir, Executive Director GCSE, Kamble sir, Dr. Manoj Gumbar sir. Dr. Manoj Gumbar sir, who actually made this possible. Respected Dr. Manoj Pataria sir, who joined virtually but was with us, and he gave a very inspirational speech also about the YESH program, and all the CSE coordinators, participants, our very respected advisor sir. And I actually, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this very important occasion. Today we have learned some of the most common mistakes that we make and how to actually deal with this current pandemic. The very common things that we actually forget. So from today, I think we should learn not to make the common mistakes that we are actually making. And no matter, as in the lecture also you might have seen, that if we all follow the norms of wearing masks, social distancing very diligently, then only we will all be able to win the fight against the COVID-19. I thank the entire team of Dr. Gumbar, again Dr. Kamble, very respected Dr. Kamble, all the Guj Coast members, especially Mr. Jatin, who put in a lot of effort in making this possible, Dr. Payal for her efforts and input, Mr. Kaushik for his IT support, entire Guj Coast family. My big thanks to our advisor, Dr. Narottam Sahu, without whose inspiration and vision this event would never have been possible. Thank you all, and once again I welcome you all. I thank you all for taking out time and listening to patiently to the talk, and I look forward to seeing you in the upcoming sessions of this COVID outreach program. And once again, thank you all and namaste.